Good morning, class. Now we will start the next chapter, that is electricity. Now, what is electricity? Electricity is generally considered as eighth wonder of modern civilized world because it discovery of this make the revolution in many things, just like industries, just like household things. Without electricity, now we cannot imagine our world, we cannot imagine our life. Now you can say कि energy, that is the type of energy. Electricity is one form of energy which produce the energy from one form to another. Means कि electricity is produced by the using another type of energy which later on convert into the electricity. Just like coal can convert into electricity, water can be used to form the electricity. When water is used for forming electricity, that is called the hydroelectricity. And we can use coal, that is also used for forming the electricity, that is called the thermal electricity, because it converts heat into electricity. So you can say कि electricity is form of energy which come from another form of energy. And another character of an electricity, not character, that is the advantage of electricity. These are, it is clean, it is clean fuel, or you can say it is the clean source of energy. So its cleanliness is one advantage. Second is it is flexible. Third is its efficiency. Flexibility means कि we can increase or decrease the power according to the requirement. And efficiency, its less amount can create the more energy. Means less amount of electricity can create the large work, can do the large amount of work than the other form of energy. That's why it is more efficient. And easy transmission, it can transmit by only using wires. जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में किससे आती वायर से. So it is very easy to transmit. Now next is what is charge. Charge is the property of matter which feel attraction or repulsion. Just like we can say कि similar charge repel each other or opposite charge attract each other. So according to this कि how charge are collected, they are of two types. One is positive, second is negative. Positive charge is also called the proton, and negative is electron. Means that is due to the presence of इलेक्ट्रॉन. तो अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन. और अगर पॉजिटिव मीन्स कि प्रोटॉन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो जाए, तो डेट टाइम इट इज़ पॉजिटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे मैथ्स में आप करते हैं, अगर हमारे पास 5 पॉजिटिव हैं, 5 पॉजिटिव हैं और 5 पॉजिटिव में से 3 नेगेटिव हैं, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव. तो नेट चार्ज इज पॉजिटिव. बट अगर अपोजिट हो जाए, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए और यहाँ पॉजिटिव हो जाए, तो नेट चार्ज विल बी नेगेटिव. मीन्स कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
कंपैरिजन में प्रोटॉन्स के ज़्यादा हैं तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो चार्ज विल बी पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को हम सी से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट भी कूलम्ब है। इजी है, सी फॉर चार्ज, सी इज सिंबल एंड सी इज कूलम्ब। दैट इज द नेम गिवन आफ्टर द साइंटिस्ट। कूलम्ब ने डिस्कवर किया था कि व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ चार्ज, सो आफ्टर हिज नेम यूनिट आल्सो यूज्ड एज कूलम्ब। एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रोस्कोप, that is used to detect the how much charge is there and how much charge is there and what type of charge is there. Now next is properties of charge. Properties क्या होती हैं चार्ज की? One property is that is like charge attract each other and unlike charge repel each other. Second is like charge repel each other or unlike charge attract each other. Electric charge is additive. Additive means add होता चला जाता है, so it is additive. Now next is electric charge is reserved. ये means store हो सकता है. Electric charge can be reserved, it can be stored. The force between two charge, किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है that is equal to the distance. सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, one is Q and second is Q2. इन ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सपोज दैट डिस्टेंस इज r, तो फोर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिवाइडेड बाय r, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैम. एंड यू कैन से कि फर्स्ट वी विल राइट लाइक दिस, force is directly proportionate to the Q1 Q2 upon R. Q1 is charge on first object, Q2 is charge on second object and R is distance between these objects. तो that is the proportionate. अब finally क्या होता है, ये proportionate कन्वर्ट हो जाता है K में. K is the constant value that is called the Coulomb's constant. Now next is methods of charging. चार्जिंग कैसे करते हैं? जनरली हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर रब कर देते हैं, चार्ज हो जाता है. एक कॉम्ब लिया और हमने उसे रब किया, तो चार्जिंग कैन बी डन बाय कंडक्शन और चार्जिंग कैन बी डन बाय इंडक्शन. दो चीज़ों से चार्ज हो सकता है. कंडक्शन से कैसे होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इतना कांटेक्ट में आते हैं कि वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट टाइम यू कैन से इट इज़ द चार्जिंग डन बाय कंडक्शन. नाउ चार्जिंग डन बाय इंडक्शन. इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट टच नहीं होगा, जस्ट उसके पास लाएं. जस्ट लाइक मैग्नेट, अगर मैग्नेट को हम किसी चीज़ के थोड़ा सा पास लाते हैं तो भी वो क्या करती है, उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है. वो टच नहीं हुई, टच होने से पहले ही वो अपना इफेक्ट देना शुरू कर देती है. तो सेम चार्जेस भी किसी ऑब्जेक्ट के जैसे ही पास आते हैं, वो क्या करता है, बिना टच किए ही
उसमें चार्ज देना शुरू कर देता है। और जब वो अगर वो कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में चार्ज आ जाता है और वो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जो उससे टच है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर वो इंसुलेटर है तो डैट विल नॉट ट्रांसफ़र। नाउ व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ऑलरेडी बता चुके, डैट इज़ कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है 1.5 इंटू 10⁻⁻19 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन के पास जो नेगेटिव चार्ज है डैट इज़ दिस मच 1.5 multiply 10⁻19. Now next is what is conductor and insulators. Conductors क्या होता है? Which does not allow electricity to pass, and insulators conductors which allow electricity to pass, and insulator which does not allow electricity to pass. We are asking about electricity. Conductor, heat conductor which allow heat to pass, electricity which allow electricity to pass. But in this chapter we learn about only electric conductor. अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर रहे हैं? अभी चार्जेस को बताया। जनरली हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से ईजीली लूजली हेल्ड करते हैं एंड विच अलाउ ट्रांसफ़र। मीन्स कि कंडक्टर जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट जो इंसुलेटर्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो दे कैन नॉट कैरी द चार्ज। इफ इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट they cannot transfer the charge. So electricity is formed from the electron, has flow of electron. Example, copper is good conductor of electricity, and rubber insulator is insulator word use already किया हुआ है। rubber is insulator of electricity. Now next is electric current. Before that I want to explain you one more thing, that is how we can calculate the charge. Now we will go to the previous slide. How we can calculate the charge. चार्ज को हमने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q = NE। मीन्स कि किसी भी चीज़ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। E इज़ इलेक्ट्रॉन, डेट इज़ 1.5 इंटू 10⁻19 एंड N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा किसी भी चीज़ के पास? That is NE. Suppose हमें कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज इन 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो N कितना हो गया? 5 एंड Q क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻19। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा? डैट इज़ N, that is 5 multiply 1.5 and that is equal to the 7.5 multiply 10⁻19. So remember this formula, Q = NE. This formula is given on second page of this chapter, and after this 2 questions are given. In one question I think total number of charge should be calculated, and in second question charge
on one electron, I think. Tomorrow I will explain you question answers numericals related to this chapter. Now next is इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं? डेट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी मैंने बताया था, डेट्स वाई वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर. कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट कैन फ्लो. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन conductor. The device which causes the flow of electron through conductor is a cell. That is a device. मीन्स कि सेल और बैटरी ऐसे डिवाइस हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना. सो सेल इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समटाइम वी यूज सेल और बैटरी. करंट जो होता है डेट इज़ ऑफ टू टाइप. वन इज़ AC, सेकेंड इज़ DC. जो सेल प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ DC करंट. AC एंड DC. AC मीन्स ऑल्टरनेट करंट एंड DC मीन्स डायरेक्ट करंट. ऑल्टरनेट क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. जब वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं सब कंटिन्यूटी में, वो क्या करते हैं, अगर एक स्मूथली फ़्लो करते जाएं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैक पोजीशन में भी आ जाए, मीन्स कि अगर ऐसे किया थोड़ा सा वो वापस आ गए, फिर गए, फिर थोड़ा सा वापस आ गए, तो डैट टाइप की फ्लक्चुएशंस, उसमें थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन होती रहे, एंड डैट टाइप ऑफ करंट इज AC. और सेल में क्या होता है, वो कॉन्टीन्यूस फ्लो करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो रिवर्स नहीं होते, उनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती. तो डेट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट करंट. अब ठीक है, AC हमारा AC करंट जो घर में वायर के थ्रू आता है, इन वायर के थ्रू आता है, दैट इज़ AC करंट. नाउ सम इन्वर्टर एंड सम बैटरीज आर ऑल्सो form the AC current, but inverter and batteries are the source of DC current, not AC current. AC current हमारा वायर के थ्रू आता है, एंड जनरेटर्स, कुछ जनरेटर्स AC जनरेट लाइट प्रोवाइड करते हैं और कुछ जनरेटर DC, बट मैक्सिमम that is used as DC current supplier. अब जो ये AC और DC है, ये तो ये क्लियर हो गया कि कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्ट. और कॉन्टीन्यूस फ्लो करने के साथ थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, फिर फ्लो किया, फिर थोड़ा सा बैक गया, फिर फ्लो किया, फिर थोड़ा सा बैक गया, दैट इज़ AC करंट. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, डैट ऑल्सो गेट फ्लक्चुएट. हमें जो फील भी नहीं होती है, इन एवरी सेकेंड it get fluctuated approximate 8 times, 8 to 16 times it get fluctuated. बट जो हमारी आइज़ की रिटेंशन पावर होती है कि जब तक वो उसे समझती है कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है, उससे पहले वो कॉन्टीन्यूस में हो जाती है. तो जिसकी वजह से हमें घर में जो लाइट सप्लाई होती है उसमें फ्लक्चुएशन ईज़िली फील नहीं होती है. बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा कट आता है, तो डेट टाइम वी कैन फील, otherwise we cannot feel the fluctuation. Now अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, they flow from नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव. मीन्स किसी भी चीज़ के दो टर्मिनल होते हैं, जैसे सेल का भी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव. तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, they flow from नेगेटिव टू पॉजिटिव. Electric flow from positive terminal to negative, this is called conventional current. मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा है, अभी बात की मैंने इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड फ्लो कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होती है, डेट इज़ अपोजिट ऑफ दिस, डेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव. मीन्स कि अगर हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज
यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फॉर्म कर जाएंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट के साइड जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो करना है। लेकिन करंट कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट is the electric current. एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं आई से। मीन्स सिंबल यूज फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज आई। और अगर हम इसके डिफाइन करें, डेट इज़ द चार्ज। अभी मैंने आपको बताया था Q इक्वल टू एन ई, डेट इज़ द चार्ज कैरिड इन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना ज़्यादा चार्ज कैरी होगा, और कितना टाइम में वो चार्ज कैरी किया है, डेट इज़ द करंट। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स 1 मिनट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो ज़्यादा चार्ज कैरी होगा, और अगर 1 मिनट में कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो कम चार्ज कैरी होगा। तो डेट इज़ द करंट। तो मीन्स कि कम चार्ज कैरी हुआ तो करंट कम हुआ, और ज़्यादा चार्ज कैरी हुआ तो करंट ज़्यादा हुआ। तो करंट डिपेंड करता है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू दिस। सेम चीज़ आप कह सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा है तो वो क्वांटिटी, अगर हमारा गुड कंडक्टर नहीं है, अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो उससे करंट कम जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल आपको देती हूँ हीट करने के लिए। अगर हम ऐसे कोई कंटेनर लें जिसमें हीट इजीली जा सकती है, इजीली ट्रांसफ़र कर सकती है, अगर हम कॉपर लें, स्टील लें पानी गर्म करने के लिए, तो वो इजीली गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम मिट्टी का कोई बर्तन लें, उसमें गर्म तो होगा लेकिन इट टेक मोर टाइम देन द स्टील एंड कॉपर वेसल। तो कॉपर और स्टील या एल्युमिनियम, जिस भी हमने मेटल का अगर बर्तन लिया है, तो मेटल के थ्रू कंडक्टर, मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट ऑल्सो। तो मेटल के थ्रू करंट और हीट पास हो गई, लेकिन मिट्टी के थ्रू नहीं हुई। तो सेम यहाँ भी अगर हमारे पास करंट, उसमें से कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए तो चार्ज कम होगा। तो मीन्स कि अगर कंडक्टर में कैपेबिलिटी कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की है तो वो करंट कम पास कराएगा, और अगर कैपेबिलिटी ज़्यादा फ्लो कराने की है तो वो ज़्यादा करंट पास कराएगा। तो उसी बेसिस पे हम गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर कहते हैं। मीन्स जिस मेटल के पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम उतना अच्छा कंडक्टर कहते हैं, और जिस मेटल के पास जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हम उतना बैड कंडक्टर कहते हैं। डैट में भी मेटल और एनीथिंग, कि जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो बैड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलरेडी बता चुके थे, कूलम्ब। टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड। सो 1, और करंट के लिए हम यूज़ करते हैं 1, डैट इज़ एम्पियर। तो एम्पियर किसके इक्वल हुआ? कूलम्ब अपॉन टाइम, कूलम्ब अपॉन सेकेंड, that is coulomb upon seconds. एम्पियर इक्वल टू coulomb upon second. सो 1 एम्पियर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज 1 coulomb चार्ज कैरिड इन 1 second प्रोड्यूस द 1 एम्पियर करंट। 1 coulomb चार्ज कैरिड इन 1 second, अगर दोनों चीज़ें 1 होगी तो ऑब्वियस आंसर 1 आएगा। तो 1 coulomb चार्ज कैरिड इन 1 second is 1 ampere of current,
और ये जो करंट मेज़र करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, डेट इज़ अ मीटर. A meter means instrument used to calculate the current, how much current is passing. जैसे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं, सेम ऐसे ही करंट को पास करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द अमीटर.